یہ بجٹ ہر سال لانے کا مقصد کیا ہے, اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ بجٹ یہ ہے کہ اخراجات اور آمدن کا تخمینہ. یوٹیلائزیشن کی طرف ایف بی آر جا رہا ہے اور آٹومیشن کی طرف جا رہا ہے, تو میرے خیال میں پراپر اگر انفارمیشن کو یوٹیلائز کرنا ہے تو ریٹس کو کم کرے. پاکستان میں تو خیر سارا سال منی بجٹس آتے رہتے ہیں, جی آرڈیننسز آتے رہتے ہیں, اس لیے بجٹ ایک بس کہہ لے کہ رسمی سی بات ہے. ٹیکس ریٹرن کو سمپلیفائڈ کرے, ریٹرن فارم کو سمپلیفائڈ کرے, کیونکہ آپ نے آخر پر جا کر ریونیو کلیکشن کرنی ہے. آنے والے بجٹ کے اعداد و شمار کیا ہے؟ ایک طرف تو آپ چاہ رہے کہ آپ بجٹ کی آمدن بڑھائیں, جی لیکن دوسری طرف آپ کی بالکل توجہ نہیں ہے, آپ کو خرچہ کم کریں. فیک اینڈ فلائنگ انوائسز کا ایشو چلا, بہت زیادہ گورنمنٹ کا جو ریونیو جو ہے وہ اسٹرک ہے. جب میں مارکیٹ جاتا ہوں تو جب میری جیب سے پیسے نکلتے ہیں تو حکومت کا دعویٰ پھر مجھے صحیح نہیں لگتا. یہ سارے لا ان پر استعمال ہو رہے ہیں جو کہ رجسٹرڈ پرسن جو آلریڈی سیل ٹیکس دے رہے. پراپرٹی پر جو کیپٹل گین کا ریٹ ہے وہ 15 سے 40% تک جا رہا ہے. نے ترقی کرنے کے باوجود بھی آج ہم وہیں کھڑے. ایک ٹیکس پیئر نے اپنا ڈی رجسٹریشن کے لیے اپلائی کر دیا ہے, 2 منتھ کے اندر اندر کمشنر نے اس کا آرڈر کرنا ہے. اگر آپ پنجاب میں بیوروکریسی کے دفاتر میں جائیں تو وہ تقریباً محل جیسے ہو گئے ہیں. الیکشن H1 یا J1 جن کا نہیں جا رہا تھا, اس کے بغیر ہی انہوں نے ریٹرن ایک دفعہ سبمٹ کر دی ہے. ہم نے تخمینہ لگایا تھا, اس سے تقریباً 800 سے 1000 ارب کے درمیان شارٹ فال رہنے کی توقع ہے. آنے والا بجٹ 2025 کیسا ہوگا؟ بہت زیادہ مہنگائی لانے والا, بہت مشکل, اور عوام کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا. گورنمنٹ جو ہے وہ اب زیادہ جو ہے وہ فوکس اس کا ڈیجیٹلائزیشن اور اس کی طرف ہے. ٹیکس ریٹ جہاں تک میں نے سنا ہے وہ کم کر رہے ہیں. پاکستان کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سکڑ رہی ہے, اس سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے, ملک میں معاشی سرگرمیاں محدود ہو رہی ہیں. تو ریٹ کم کرنے چاہیے, سیلری کا ریٹ بھی کم کرنا چاہیے, بزنس کے بھی ریٹ 45% تک ہے وہ بھی کم کرنا چاہیے. 19 ارب ڈالر جو اگلے سال ہم نے قرضہ دینا ہے, اس کے لیے پاکستان کے پاس کیا انتظام ہے؟ پاکستان کو اپنے ملٹی ڈونر ملکوں سے اور ایجنسی سے بات کرنی چاہیے کہ ہم یہ 10 سال تک یہ پیسہ نہیں دے سکتے. تو گورنمنٹ کو ایسا کرائٹیریا کرنا چاہیے کہ سب کے ساتھ ایک طرح کا سلوک کرے. اس آنے والے بجٹ میں عام آدمی کو کوئی ریلیف ملے گا؟ مطلب کہ وہ عام آدمی کی طرف تو کوئی توجہ نہیں دے رہا. اور اس طرح کا وہ لگایا سسٹم کہ سارے اس میں آ جائیں. جب سارے آ جائیں گے تو میرا خیال ہے اس میں ریونیو میں اضافہ ہو. دیکھیں, آپ کے پرائم منسٹر نے بیان دے دیا ہوا 2 دن پہلے کہ آپ کو سخت فیصلے کرنے ہیں, تو کیسے ریلیف ملے؟ اے ڈی آر کو ہم کس طرح پاورفل فال کر سکتے ہیں؟ اے ڈی آر میں ریلیونٹ کمشنر کو لے کر آئے, اس میں اے ڈی آر میں کہیں جی کہ ہر بندہ اے ڈی آر میں جا سکتا ہے. جس کو ہم ریاست کہتے ہیں وہ اتنا خرچہ کر رہی ہے کہ جس کا, اور عوام سے کہہ رہی ہے کہ اب سخت اچھا, فیصلے. حکومت صاحب موجود جو ٹیکس پیئر ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے حکومت؟ ریٹرن کو سمپل کرے. جو ٹیکس پیئر آلریڈی ریٹرن دے رہے ہیں ان کو یہ بے تحاشا الیکشن سے اس سے بچائیں. یہ ملک ہمارا 1947 میں آزاد ہو گیا تھا, لیکن میں ود ڈیو ریسپیکٹ یہ کہوں ابھی تک ہم آزاد نہیں. اچھا, نان فائلر کے ساتھ یہ نان فائلر کیا ہے؟ یہ ناکامی ہے. یہ نان فائلر تو ہونے نہیں چاہیے. ایک میٹر اگر سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کر دیا ایک ایشو پر, اور اسی ایشو کے جو سملر کیسز ہیں مظاہر ہے وہ سارا وہ ریونیو وہ تو ختم ہو گیا. نان فائلر کا مطلب ہے کہ جو ریاست ہے نا, جو ہم اتنی ہارڈ اسٹیٹ اب بنتی جا رہی ہے, اس نے ہینڈز اپ کر دی. ٹیکس پیئر کو فیسیلیٹیٹ کریں, اسی طرح ہی جو ہے وہ کلیکشن آپ کی آئے گی. السلام علیکم ناظرین, پروگرام ٹیسٹ راؤنڈ کے ساتھ میں حفظ الایوبی. ناظرین, بجٹ 2 جون 2025 کو پیش کیے جانے کا امکان ہے. 20,000 ارب سے زائد کا یہ بجٹ ہوگا. عام آدمی کو کیا ریلیف ملے گا, اور حکومت ٹیکس اہداف کو پورا کرنے کے لیے کیا حکمت عملی طے کرے گی, اور بجٹ کیسا ہوگا, اس پر آج ہم گفتگو کریں گے. اور گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے عمر اقبال خواجہ صاحب, سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہے, ماہر ٹیکس امور ہے. ان کے ساتھ موجود ہے ملک جلیل اعوان صاحب, آپ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں, سینئر نائب صدر ہیں انٹرنیشنل لائر ایسوسیشن کے, اور لیگل ایڈوائزر ہیں پنجاب یونیورسٹی کے. عمر اقبال خواجہ صاحب, سب سے پہلے سر آپ کی طرف آؤں گا. یہ بجٹ ہر سال لانے کا مقصد کیا ہے, اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ بجٹ کیا ہے؟ بجٹ یہ ہے کہ اخراجات اور آمدن کا تخمینہ. جب بھی آپ نے اگلا سال کے لیے حکومت دیکھتی ہے کہ اس کے اخراجات کیا ہوں گے اور اس کی آمدن کیا ہوگی. کوئی بھی ملک بغیر بجٹ کے نہیں چل سکتا. اب ہر سال آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کو 500 ارب روپے اگر ترقیاتی کے لیے چاہیے, 1000 ارب روپے آپ کو دفاع کے لیے چاہیے, تو اس کو جنریٹ کہاں سے؟ جی اس لیے ایک بجٹنگ کی, اسی چیز کو ہم وفاقی بجٹ کہتے ہیں. لیکن پاکستان میں تو خیر سارا سال منی بجٹس آتے رہتے ہیں, آرڈیننسز آتے رہتے ہیں, اس لیے بجٹ ایک بس کہہ لے کہ رسمی سی بات ہی. جو بجٹ 2024 اور 25 پیش کیا گیا تھا عمر صاحب, اس کے بعد امید تھی, کیونکہ نئے ٹیکس تو کوئی نہیں لگائے گئے تھے پچھلے سال, لیکن امید تھی سارا سال کوئی نیا بجٹ بھی, کوئی منی بجٹ بھی نہیں آئے گا. لیکن یہ پورا سال امینڈمنٹس کا سال اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. جی ہاں بالکل. دیکھیں, پچھلے سال جو بجٹ آیا تھا اس میں ٹیکس کے ریٹس
बेतहाशा बढ़ा दिए गए थे जो कि पूरे खिते में कोई जस्टिफाइड नहीं है, वो रेट्स है ही नहीं थे। उस बजट के बावजूद भी हुकूमत को चूंकि तकरीबन 800 से 1000 अरब रुपए का शॉर्टफॉल आ रहा था, तो वक्तन फवक्तन रेवेन्यू मेयर्स लेते रहे। अब ये तो नहीं कह सकते रेवेन्यू मेयर्स आते रहे हैं जिसमें उनकी रिकवरी के तरीक़ेकार को बिल्कुल ही एक ऐसा तरीक़ेकार बना दिया गया जिसके अंदर अदालतों का बिल्कुल खत्म ही हो गया कि कोई अपील का, कोई दलील का वक़्त ही नहीं दिया गया, और कहा गया जहाँ पर कोई मामला तय हो गया है, हालांकि हर केस के अपने फैक्ट्स होते हैं, उसको देखे बगैर भी रिकवरी की। पिछले साल कितना शॉर्टफॉल था और इस साल कितना है? इस साल जो 24-25 है वो तकरीबन हमने तखमीना लगाया था, उससे तकरीबन 800 से 1000 अरब के दरमियान शॉर्टफॉल रहने की तवक्को है। 830 अरब रुपए से तो बढ़ गया है। असल में ये जैसे हुकूमत कह रही है कि शायद हम सुपर टैक्स की कोई रिकवरी कर ले लोगों से 137 अरब की, कुछ करा ले और कुछ मजीद लोगों से टैक्स ले लिया जाए जो नहीं भी बनता, तो उसके बाद इनका ख्याल है कि इनका 800 अरब की रेंज में ही रहे। आने वाला बजट 2025 कैसा होगा? बहुत ज्यादा महंगाई लाने वाला, बहुत मुश्किल, और आवाम को काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना। आने वाले बजट में जो ज़राए बता रहे हैं, पहले तो IMF की शराइत भी चंद थी, वो अब 50 के करीब पहुंच चुकी हैं। अगर IMF की 50 से ज्यादा शराइत हैं तो फिर आप क्या समझते हैं कि आम आदमी को रिलीफ मिल पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, IMF ने इनको तमाम रिलीफ के रास्ते मसदूद कर दिए हैं। उन्होंने इतनी लंबी अपनी विश लिस्ट दी है कि जिसके बाद हुकूमत मेरा ख्याल है आवाम को रिलीफ एक रुपए का भी रिलीफ नहीं दे सकेगी। और बल्कि देखिए, इस साल जो आपका ज़रूरी तबका है वो बड़ी बुरी तरह मुतासर होगा। आपके ज़रूरी टैक्स के रेट्स, अभी तो हम खाली इनकम टैक्स और सेल टैक्स की बात करें, IMF के कहने पर इन्होंने ज़रूरी टैक्स के रेट्स भी काफी ज्यादा इंक्रीज, वो भी 45% तक ले गए, भी हिट पर है, बड़ा हिट पे है। और ज्यादा रिकवरी देखिए, आप जब GDP टू टैक्स रेशो कहते हैं तो उसमें ये देखा जाता है आम दुनिया से कम है, और भाई वो आम दुनिया से इसलिए कम है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर को छूट थी और रिटेल सेक्टर डिफरेंटली डील कर रहा था। अब तो जो हालात है, जो बजट आ रहा है, उसके बाद तो आपके पास कोई किसी किस्म, मतलब जलील अमान साहब, पिछले साल के बजट को देखते हुए आने वाला बजट 2025 आपको कैसा लगता है? इस दफा भी गवर्नमेंट का यही है, कोई नजर नहीं आ रहा कि कोई टैक्स रेट्स को कम करेंगे। हालांकि मेरे ख्याल में डिपार्टमेंट जो है वो जिस तरह डिजिटलाइजेशन की तरफ FBR जा रहा है और ऑटोमेशन की तरफ जा रहा है, तो मेरे ख्याल में प्रॉपर अगर इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करना है तो रेट्स को कम करे, टैक्स रिटर्न को सिंप्लीफाइड करे, रिटर्न फॉर्म को सिंप्लीफाइड करे, क्योंकि आपने आखिर पर जाकर रेवेन्यू कलेक्शन करनी है। तो जब एक फॉर्म ही आप जो है वो 50-50 पेजेस का बना देंगे तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप देखें कि आप सेल टैक्स के रिटर्न के कितने एनेक्स्चर है। अब आपको मैं बता दूं कि एनेक्स्चर F है रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोसेस का उन्होंने ऐड इंट्रोड्यूस कराया, फिनिश गुड्स आपने देनी है, एनेक्स्चर H में स्टॉक स्टेटमेंट देनी होती है, रिफंड क्लेम करना होता है, H1 में रॉ मटेरियल की फिर डिस्क्रिप्शन देनी है, HS कोड वाइज देनी है, एनेक्स्चर J में आपने प्रोडक्शन टर्न के मुताबिक देनी है। तो इसके बराए अगर आप सिंप्लीफाई कर दें, अगर आप इनपुट को खत्म ही कर दें और आउटपुट का रेट आप कम कर दें, आप 10% कर दें 18% के बजाय, जिस तरह बाहर के मुमालिक में वैट है और आपके पास ऑलरेडी पॉइंट ऑफ सेल आपने लगाया हुआ है, आपके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है, तो इससे बहुत ज्यादा जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सकता है। मतलब जलील अमान साहब, सेल टैक्स में जिस तेजी के साथ अमेंडमेंट्स आ रही हैं, हम किस तरफ जाना चाह रहे हैं सेल टैक्स में? मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के दो मकासद है। एक तो सबसे पहले ये है कि फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस का इशू चला, बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू जो है वो स्ट्रक है। जिस तरह खाई साहब ने कहा कि आप सुपर टैक्स, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 50% कलेक्शन कर, अब डिपार्टमेंट ये कोशिश कर रहा है कि सुपर टैक्स से बजट पूरा कर ले। क्योंकि फेक एंड फ्लाइंग केसेस के जो केसेस थे वो डिपार्टमेंट के हाथ पर ही वो बंदे रजिस्टर्ड हुए थे। वो सुप्रीम कोर्ट का भी आर्डर आ गया कि जब वो एक्टिव थे एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन, तो वो उसमें तो आप रिकवरी का चांस वो लगता नहीं है। डिपार्टमेंट के मजाज को जानते हैं, आप समझते हैं इतनी तरामीम करने के बावजूद फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस का खात्मा मुमकिन है? फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस का ये बेसिकली जितने सारे यूबी साहब उन्होंने एनेक्स्चर बनाया, इसी वजह से बनाया कि एंड पर जो है वो ये पता लग जाए कि जेन्युइन बंदे के पास वही रॉ मटेरियल है जो कि उसने इस्तेमाल किया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये समझता हूँ कि फ्रॉड फिर भी फ्रॉड का एलिमेंट है। फ्रॉड की डेफिनेशन को उन्होंने बहुत वसी कर दिया है। 15 साल तक जो है जो ऑलरेडी, और ये सारे लॉ उन पर इस्तेमाल हो रहे हैं जो कि रजिस्टर्ड पर्सन जो ऑलरेडी सेल टैक्स दे रहे। एक बंदा लायबल है, रजिस्टर्ड है सेल टैक्स में, उसको भी रजिस्ट्रेशन उसकी भी होनी चाहिए, उसका भी 10 लाख का बिल पर मंथ आ रहा है और रजिस्टर्ड बंदे का भी 10 लाख का आ रहा है। लेकिन ये जो मैंने आपको सारी स्टॉक स्टेटमेंट है और ये सारी बताई है, ये रजिस्टर्ड पर्सन ने भरनी है। जो अनरजिस्टर्ड बंदा है वो तो
इंजॉय कर रहा है। मलिक साहब 78 साल में सेल टैक्स में हमने जितनी तरक्की की, आज तक डी रजिस्ट्रेशन का जो अमल है आज तक उसको हम मुकम्मल नहीं कर पाए। आज हमने ऑनलाइन कर दिया है सेल टैक्स को, अब डी रजिस्ट्रेशन करवाने तो ऑनलाइन जाके आप करें। आप समझते इतने तरक्की करने के बावजूद भी आज हम वहीं खड़े। अरे मेरे ख्याल में ये एक अच्छा इकदाम है FBR का। अब उन्होंने ये कहा है कि आप अगर डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दें और उसके बाद अगर आप रिटर्न ना भी दें, डी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन सिस्टम पर देने के बाद, सुन लेना सर, डी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन देने के बाद रिटर्न, पहले बहुत ब्लैकमेलिंग होती थी, पहले बहुत ज्यादा ऑडिट होता था, जब से रजिस्टर्ड। और अब कमिश्नर को भी उन्होंने कह दिया कि जब एक टैक्स पेयर ने अपना डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया है तो मेरे ख्याल में 1 मंथ, या खाई साहब को पता होगा 2 मंथ उन्होंने दिए हैं कि 2 मंथ के अंदर अंदर कमिश्नर ने उसका ऑर्डर करना है, देनी है। लेकिन उसमें जो सी है और एक सेक्शन और है उसकी उसमें छूट दी है, ये आप निकाल सकते हैं उसको, लेकिन रिटर्न आपको देनी पड़ेगी। मैनुअल आज तक हुई नहीं। मैनुअल जो डी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। मैं ये समझता हूँ कि जब से ऑटोमेशन की तरफ FBR आया है, ऑफिसर पर भी प्रेशर है, ऑफिसर्स पर भी प्रेशर है, एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट में भी अब जो है वो स्पीडी काम होता है। इस तरह शोकाज नोटिस इनकम टैक्स का आता है, सेल टैक्स का आता है, तो एक टाइम करार दे दिया गया कि आपने इतने दिनों के अंदर करना है, तो ये डी रजिस्ट्रेशन का भी अब टाइम दे दिया गया है। तो मेरे ख्याल में ये तो एक अच्छा कदम है। डी रजिस्ट्रेशन का टैक्स पेयर अपने तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ अगर सिस्टम पर अप्लाई कर दे तो एनेक्स्चर H1 और J अगर ये अभी तक रिटर्न पेंडिंग है, अभी तक उनको अभी तक मुकम्मल नहीं हो पा रही, हर बार तोसी की जा रही है, आप समझते हैं इतनी भी इनेक्स्चर बनाने से रिटर्न में सिर्फ मुश्किलात पैदा करने के अलावा और कुछ हासिल हो सकते हैं? और ये भी सब बहुत ज्यादा मुश्किलात है। देखिए मैंने अपना नेक्स्टर H1 ये जेब बांधी है, लेकिन जिससे मैंने माल लिया हुआ परचेज किया उसका कोई प्रॉब्लम है, वो पीछे से नहीं आ रही रिटर्न, तो मेरी रिटर्न नहीं जा सकती। अब जब 2 महीने के बाद 2 महीने अगर मैं कंसेक्टिव रिटर्न नहीं दूंगा तो मैं इनएक्टिव हो जाऊंगा। 15 तारीख होती है टैक्स जमा करवाने की, 18 तारीख होती है रिटर्न देने की। हर दूसरे महीने में अगर 2 महीने में कंसेक्टिव नहीं जमा करवाता तो मैं तो इनएक्टिव हो जाता हूँ और तमाम वो पेनल्टीज और तमाम वो मुझको लग जाती, मेरा आगे से बिल रुक जाता है। तो अब इसका टैक्स पेयर ने यही किया है कि नेक्स्टर H1 या J1 जिनका नहीं जा रहा था उसके बगैर ही उन्होंने रिटर्न एक दफा सबमिट कर दी है। इसके प्रॉब्लम तो उनको आएंगे आगे, लेकिन इसको जो है वो उनको फैसिलिटेट करना चाहिए और इनको टाइम देना चाहिए। अच्छा, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बहुत से मसाइल है, ILA ने प्रपोजल भी दिया है FBR को भी, वफाकी वजीर को भी, उनमें क्या चाहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए हुकूमत क्या करे ताकि ज़र मुबादला बढ़े और रेमिटेंस भी बढ़े? हमारी जो मेजर इश्यूज हमने ओवरसीज के बताया जी वो 4 है। सबसे पहला तो वो हर 2 महीने के बाद यूजर ID पासवर्ड करना पड़ता है। एक ओवरसीज है, जिस तरह एक लेडीज है वो अपना यूजर ID पासवर्ड लेती है 6 महीने के बाद। ज्यादातर ओवरसीज का क्या होता है कि उन्होंने पाकिस्तान में को प्रॉपर्टी लेनी होती है ताकि फाइलर के लिए, अब तो वो नाइकोप और POC उन्होंने कर दी है उस पर रिटर्न के, लेकिन इवन अदरवाइज भी अगर रेंटल इनकम होती है इसके अलावा उनको सेल टैक्स का नंबर तो नहीं लगा होता, तो उनका यूजर ID की प्रॉब्लम है। ये हमने प्रपोजल दी कि ओवरसीज को इसका एग्जाम्प्ट किया जाए। इसी तरह उनकी कंडोनेशन के मसाइल है कि ऐसे ओवरसीज को टैक्स लग जाता है, जब वो प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो FBR के साथ उनका लिंक कर जाता है 236K का चालान, तो उस बेस पर एक ऑफिसर टैक्स लगा देता है। अब वो बाहर होता है, पाकिस्तान से बाहर होता है, वो जब इधर आते हैं तो उनको पता चलता है कि जनाब उनको तो साल हो गया है, 10 लाख 15 लाख 20 लाख टैक्स लगा हुआ। वो जब कमिश्नर अपील के पास जाते हैं तो वो 1 महीने के अंदर अंदर अपील करनी होती है, वो बात को उनकी कंडोन नहीं होती। तो उसके लिए हमने चीफ कमिश्नर साहब जो के CTO की जुडिक्शन उनको रिक्वेस्ट, और उन्होंने कहा जी कि मैं बिल्कुल इस पर जो है कि ये रेलेवेंट जोन का कमिश्नर सुने, ये चीफ कमिश्नर एलडीज आप 122 एक कंपल्सरी करें, जिस तरह आपने ADR स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के लिए की हुई है, नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर के लिए जिनकी कोई इनकम नहीं है, पहली उनकी अपील जोनल कमिश्नर के पास होनी चाहिए। अपील फी भी उनको जमा करवाने की जरूरत नहीं और उसमें टाइम लिमिटेशन भी ना हो, ताकि अगर उनका जेन्युइन केस है तो वो डिमांड उधर ही जो है खत्म हो जाए। प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए आप क्या समझते हैं? ओवरसीज के लिए प्रॉपर्टी सेक्टर में क्या रिलीफ होना चाहिए? दूसरे आम पाकिस्तानियों के लिए भी प्रॉपर्टी की जो खरीदो फरोख्त है उसमें कौन से जो टैक्सेस लगे हैं उनको खत्म करना चाहिए कि मजीद रेट बढ़ाना चाहिए? जो भी सब प्रॉपर्टी सेक्टर में ओवरसीज के लिए ये है कि उन्होंने टैक्स को फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी कहा हुआ है, बाकियों के लिए एडजस्टेबल है। ओवरसीज अगर बाहर से पैसा थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल भेजते हैं तो नाइकोप और POC कार्ड अगर वो देता है तो उसका नॉर्मल रेट ही है, लेकिन टैक्स वही परचेज का रेट 5 करोड़ तक 3% है, सेल का भी वो सेम है। इसमें भी हमने ये प्रपोजल दी है कि अगर उनका सोर्स ऑफ इनकम पाकिस्तान में है ही नहीं तो उनको या तो जीरो कर दें, फाइनल टैक्स का उनको कोई फायदा नहीं है, या तो जीरो कर दें या उनका रिड्यूस कर दें ताकि उनकी इंकरेजमेंट हो और पाकिस्तान में वो सरमायाकारी ज्यादा से ज्यादा पैसे यहाँ पर है, इस तरह वो रोशन डिजिटल अकाउंट में पैसे भेजते हैं, वहां से आगे अगर लोकल करेंसी में देते हैं और उससे कोई इंडस्ट्री में पैसे वही ओवरसीज लगाता है तो उसको भी आप टैक्स की एग्जम्पशन दे। जिस तरह पैसा D का था 5 साल के लिए टैक्स की एग्जम्पशन दी, तो ओवरसीज अगर उसी से अपने पैसे से वो ये साबित करते हैं कि बाहर उन्होंने काम किया और वही पैसा इधर आया है तो उसमें उनको टैक्स की भी एग्जम्पशन दी जाए। इसी तरह अगर उनका डिपेंडेंट कोई प्रॉपर्टी लेता है, अब ओवरसीज एक सऊदी अरब में हमारे छोटे लेवल पर काम कर रहे हैं, वो अपने मिसेस के नाम ये प्रॉपर्टी लेते हैं, वो गाँव के होते हैं, तो उन बेचारों को लेट फाइलर का और वो टैक्स लग जाता है 8-8%
نہیں جی ان کو فل ٹیکس لگ جاتا ہے. اگر 1 کروڑ کی پراپرٹی ہے 10 لاکھ روپے پیسے ان کے ہسبینڈ نے بھیجے ہوتے اور ان کا کوئی یعنی کہ ان کا نہیں ہوتا. تو ایسے لوگوں کو بھی کچھ سہولتیں آپ دیں کہ اگر وہ بینکنگ ٹرانزیکشن سے یہ ثابت کر دیں کہ وہ باہر ان کے جو ان کے اپنا باہر ہسبینڈ ہے جو کمانے والے ہیں وہ باہر جینوئن ان کا سورس ہے اور انہوں نے پیسہ ان کے ہی اکاؤنٹ میں بھیجا ہے تو ان کو بھی ایگزمپشن دی جائے تاکہ چھوٹے والا جو طبقہ ہے وہ کم از کم وہ پروٹیکشن میں آ جائے اور وہ جو ہیوج ٹیکسز ہیں پراپرٹی سے اس سے بچ سکے. اچھا پچھلے بجٹ میں ملک صاحب کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا لیکن ود ہولڈنگ کے ٹیکسز کے ریٹ اور دوسرے ٹیکس کے ریٹ وہ بڑھا دیے گئے تھے. اس بجٹ میں آپ کیا سمجھتے ہیں ٹیکس ریٹ بڑھیں گے یا کم ہوں گے؟ ہونا کیا چاہیے؟ اس میں خواجہ صاحب جو ہے وہ بہتر بتا سکیں گے. جی میرا تو خیال ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اب زیادہ جو ہے وہ فوکس اس کا ڈیجیٹلائزیشن اور اس کی طرف ہے. ٹیکس ریٹ جہاں تک میں نے سنا ہے وہ کم کر رہے ہیں. پراپرٹی کے اور سیل کے جو ٹیکس ریٹ ہیں اور ایف ای ڈی بھی شاید ختم کر رہے ہیں لیکن جب تک نوٹیفکیشن نہیں آتا تو ریٹ کم کرنے چاہیے. سیلری کا ریٹ بھی کم کرنا چاہیے. بزنس کے بھی ریٹ 45% تک ہے وہ بھی کم کرنا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں آپ پوری عمر اس ڈپارٹمنٹ میں ہوگی ہے ٹیکس کو بڑے قریب سے آپ جانتے ہیں آٹومیشن کی طرف جانے سے ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جانے سے کیا ہمارے جو موجودہ ٹیکس پیئر ہیں وہ کتنا لٹریسی ریٹ ہے ان کا جو اس کو سمجھتے ہیں؟ عجیب صاحب ایسی بات نہیں ہے. ڈیجیٹلائزیشن تو وہ ہے. دیکھیے ایک ٹیکس پیئر کو پتا تو ہوتا ہے کہ اس کی کتنی انکم ہے ایک ریڈی والے کو بھی ہے لیکن دراصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ دوسرے کو دیکھ رہے ہو کہ ساتھ والے 10 جو ہے وہ نہیں کر رہے تو میں اگر دوں گا تو میں اکیلا. تو گورنمنٹ کو کوئی ایسا کرائٹیریا کرنا چاہیے کہ سب کے ساتھ ایک طرح کا سلوک کرے اور اس طرح کا وہ لگائیں سسٹم کے سارے اس میں آ جائیں. جب سارے آ جائیں گے تو میرا خیال ہے اس میں ریونیو میں اضافہ ہوگا. عمر اقبال خواجہ صاحب آنے والے بجٹ کے اعداد و شمار کیا ہے؟ سر اس مرتبہ اس سے بھی شاید تھوڑا زیادہ آئے گا کیونکہ ایک جو چیز آپ سمجھ نہیں رہے آپ ایک طرف تو آپ چاہ رہے کہ آپ بجٹ کی آمدن بڑھائیں جی جی لیکن دوسری طرف آپ کی بالکل توجہ نہیں ہے. آپ کو خرچہ کم کرنا ہے. خرچہ بزنس ایکٹیویٹی اور معاشی سرگرمیاں ان کو فروغ دینے کے لیے حکومت اقدامات کرنے چاہیے لیکن وہ معاشی محدود ہوتی جا رہی ہیں. دیکھیے آپ جو بات کر رہے ہیں میں آپ جی کو جی. ایک چیز بتا دوں کہ اگلے بجٹ میں زیادہ تر ریٹس بڑھ پراپرٹی کی میرے بھائی بات کریں پراپرٹی پر جو کیپٹل گین کا ریٹ ہے وہ 15 سے سنا 40% تک جا رہا ہے. پہلے 25 کہا جا رہا تھا اب خبر آ رہی ہے کہ اس کو 40% پہ لے کے جا رہے ہیں. اگر اس طرح کے ڈراسٹک سٹیپس ہے تو رہی صحیح کسر پاکستان کی اکانومی میں سے وہ بھی نکل جائے گی. دیکھیں اس وقت جو پاکستان کے لیے موسٹ الارمنگ چیز ہے آپ کی جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ کنٹریکشن پہ جا رہی ہے. مطلب اس کا کیا ہے یہ ان کے اپنے سٹیٹس کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ سکڑ رہی ہے. اس سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے. ملک میں معاشی سرگرمیاں محدود ہو رہی ہیں. پچھلے 3 سال میں پاکستان میں کسی قسم کی فورن انویسٹمنٹ نہیں آئی کسی قسم کی لوکل انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی کوئی نئی انڈسٹری نہیں لگ رہی. یہ بڑا الارمنگ بات ہے. یہ الٹیمیٹلی یہ بڑا مشکل میں چلے جائیں. جو حکومتی ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں چیزیں آ رہی ہیں وہ تو یہ کہا جا رہا ہے مہنگائی 60 سال کی کم ترین سطح پر آ چکی ہے. اس کا مطلب ملک میں پھر یہ تھوڑی سی پھر دیکھیں مہنگائی 60 سال کی کم ترین سطح پر نہیں مہنگائی بڑھنے کی رفتار کم ہوئی ہے. یہ بڑی ایک لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. شاید حکومت بھی جب میں مارکیٹ جاتا ہوں تو جب میری جیب سے پیسے نکلتے ہیں تو حکومت کا دعویٰ پھر مجھے صحیح نہیں لگتا. یہ چیز ان کو ریورس پڑ رہی ہے. اس وقت جب ہم مارکیٹ میں کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو وہ ہمارے لیے اتنی مہنگی بات بجلی کا بل ہر مہینے میری جیب کاٹ رہا ہے. اب حکومت کہتی رہے میں نے بجلی سستی کی ہے جب میرا بل ہی نہیں کام ہو رہا تو میں کیسے مان لوں کہ میری 200 یونٹ سے اوپر 1 یونٹ جاتا ہے تو 8000 روپے بل چلا ہے. حکومت کو سوچنا چاہیے کہ یہ چیزوں کی قیمتیں کم کرنی پڑیں گی لوگوں کو ریلیف دینا پڑے گا چونکہ عام آدمی کی تو اب کو سنوائی ہے ہی نہیں ہے. اس ملک میں اس وقت عام آدمی کی کوئی آواز نہیں ہے. اپوزیشن کے اپنے ہی مسائل ہیں وہ اور طرف ہے مطلب کہ وہ عام آدمی کی طرف تو کوئی توجہ نہیں دے رہا. اس آنے والے بجٹ میں عام آدمی کو ریلیف ملے گا؟ نہیں ملے گا. دیکھیں آپ کے پرائم منسٹر نے بیان دے دیا ہوا 2 دن پہلے کہ آپ کو سخت فیصلے کرنے ہیں تو کیسے ریلیف ملے. اچھا سخت فیصلے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ بیوروکریسی اگر آپ پنجاب میں بیوروکریسی کے دفاتر میں جائیں تو وہ تقریباً محل جیسے ہو گئے ہیں. فارچونر گاڑیاں ایسے بانٹی گئی جو ڈلیوریاں بانٹی گئی ہیں. آپ نے لینڈ کروزریں تک کمشنرز کو دے دی ہیں. ابھی ایف بی آر کے افسروں کو 1200 کا یعنی کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس وقت بیوروکریسی اور یہ جو جس کو ہم ریاست کہتے ہیں وہ اتنا خرچہ کر رہی ہے کہ جس کا اور عوام سے کہہ رہی ہے کہ اب سخت. اچھا عمر صاحب بریک کا کہا جا رہا ہے بریک سے پہلے میں طرف سوال چھوڑ رہا ہوں. اب جب یہ بجٹ 2 جون کو پیش کیا جائے گا اس کے بعد یا اس سے پہلے مافیا متحرک ہوتا ہے سٹاک کرتا ہے یہ چیزیں مہنگی ہوں گی ان کو پہلے پتا ہوتا ہے یہ چیزیں اوپر جائیں گی وہ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. دوسرا یہ گاڑیوں کی پراپرٹی کی کون سی چیزیں اب بڑھنے والی ہیں اور جو انویسٹر ہے یا جن کے پاس سرمایہ ہے اشرافیہ ان کو کس طرف آپ سمجھ رہے ہیں اب آنے والا وقت اس طرف جائے گا. لیکن بریک سے بعد ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाजरीन। जी उमर साहब, कि गाड़ियों की कीमतें भी गिर जाएंगी, प्लाटों की कीमतें भी गिर जाएंगी। बजट के बाद IMF ने इनके लिए एक अनोखी शर्त लगाई है कि पुरानी गाड़ियों के ऊपर जो आपने इंपोर्ट रोकी हुई है उसको बहाल किया जाए। अगर ये उसकी शर्त मान ली गई तो पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमतें कम हो जाएंगी। सिमिलरली अगर कैपिटल गेन लग गया 40% के ऊपर आ गया टैक्स, तो प्लाटों की भी तो खरीदारी को नहीं मिलना आपको। ये दो आइटमें तो बिल्कुल आप समझिए कि बिल्कुल इनके लिए तो कोई अच्छी खबर नहीं है। प्रॉपर्टी वालों के लिए भी अच्छी खबर नहीं नहीं है और गाड़ियों वाले सेल के लिए। परचेज दोनों के लिए अच्छी जी, खबर जी, नहीं है, दोनों के और लिए। गाड़ियों वाले के लिए भी अच्छी कोई- नहीं है। यानी कि ये गाड़ी मैं- जिसने सेल करनी है वो पहले बजट से सेल कर ले। मैं ये नहीं बहरहाल मशवरा देता किसी को गाड़ी सेल कर। अभी IMF की इस वक्त तजवीज है, जी जी, उन 50 में से एक ये है कि इम्पोर्टेड गाड़ी, ये पुरानी गाड़ियों की इम्पोर्ट की आपको इजाजत देनी चाहिए। आप इसको बिला वजह रोक रहे हैं, इससे लोकल लोगों को, लोकल जो मार्केट है उसको आपने अनड्यू एडवांटेज, जो आगे जाएगी। आपको प्रॉब्लम नजर आ रही है जी, वो जी। कमोडिटीज की प्राइसेस में इंक्रीज आ सकता है। चीनी, तो जी जी, दूध, दालें, जी, ये जी, सारी सिगरेट चीजें वगैरह हर महंगी चीज है। मार्केट अगर से- आप देखेंगे जी। चीनी पहले ही 8 रुपए किलो बढ़ गई है, इसी जी। एंटीसिपेशन में ये तकरीबन 30 से 35 रुपए किलो इसमें बढ़ सकती अच्छा उमर साहब, हुकूमत का जो बजट पूरा करने का तरीकेकार है, आप क्या समझते हैं वो दुरुस्त है? है। नहीं वो देखें, एक आप समझने की कोशिश करें, आपके मुल्क में 2-3 साल से क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट हो रही? उसकी वजह ये है कि आपके, हम लाहौर में है, कराची में से तो 2 घंटे की फ्लाइट पर दुबई है, वहां पर 9% रेट है, वो भी अभी कुछ आइटम्स पे है। आप यहाँ पर 59% तकरीबन टैक्स ले रहे हैं। तो मनी हैज नो बाउंड्रीज एंड नो कैपिटल, यानी कि हम कहते हैं कि पैसे का कोई मुल्क होता ही नहीं है, जहाँ पर उसको फायदा मिलता है वहां ट्रांसफर हो जाता है। पाकिस्तान से बहुत सारा फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है, जो लोकल इन्वेस्टर्स का वो दुबई की तरफ रुख किए हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने ये जो आपने नाजायज टैक्सेस लगाए ना, CVT की सूरत में कैपिटल वैल्यू टैक्स लगाया है, जो लोग फॉरेनर, वो लोग अपने आप को नॉन रेजिडेंट्स डिक्लेयर कर रहे हैं। वो 7 महीने बाहर रहते हैं, 5 महीने पाकिस्तान में रहते हैं और तमाम बेनिफिट्स एंजॉय करते हैं। तो इनको चाहिए कि अपने आप को बेहतर करे। आपको मैं एक बात बताऊं, अभी मेरे भाई की बात हो रही सेल्स टैक्स रिटर्न, मैं यहाँ पर बैठ के चैलेंज कर सकता हूँ कि अच्छे से अच्छा कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या सेल्स टैक्स वो ये नहीं रिटर्न बढ़ेगा। नहीं बढ़ सकता। आप सही कहते मैं हैं। चैलेंज कर रहा हूँ। अच्छा, मौजूदा हालात में बजट जैसा आ रहा है, कॉर्पोरेट हजरात का लाहेमल क्या होगा फिर? सर मायूसी है, आप क्यों नहीं समझ रहे? इस वक्त चैम्बर की कोई सुनवाई नहीं हो रही। चैम्बर ने J1 H1 के ऊपर इतना एहतजाज किया। उन्होंने ये जो रिकवरी के लिए नया ऑर्डिनेंस है जिसमें डायरेक्टली मेरे बैंक से डेबिट होने हैं पैसे, उसके ऊपर उनकी कोई सुनवाई नहीं है। आप कारोबारी आदमी को तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं देना चाहते। देखिए मुमलिकत होती है, उसने कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, हमारी स्टेट का किताबों के हिसाब से आइडियल फंक्शन क्या है? इट हैज टू प्रोड्यूस अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जहाँ पर लोग प्रॉफिट कर सकें और उस प्रॉफिट में से स्टेट टैक्स लेती है। आप वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दे ही नहीं रहे हैं। आपके मुल्क के जिस रीजन में हम कंपटीशन में हैं, वहां पर सबसे हायर टैक्स रेट्स हैं, सबसे ज्यादा बिजली के रेट्स हैं, सबसे ज्यादा गैस के रेट्स हैं, और जो इस मरतबा IMF की शराइत है उसमें गैस के रेट्स फिर बढ़ जाने हैं। मकसद है आप कैसे अपने मुल्क को बचाएंगे? उमर साहब, अभी मलक जलील अवान साहब कह रहे थे टैक्स रेट कम करने की। अगर वो खित्ते के दूसरे ममालिक हैं, क्या वो टैक्स रेट कम बहुत कम या है, ज्यादा है? बहुत अगर कम कम है है। तो पाकिस्तान का क्या नुकसान है? सर बहुत कम है। अगर पाकिस्तानी रुपयों में हमारे असली दुश्मन भारत का देखा जाए, वहाँ पर 41 लाख रुपए की एग्जम्पशन है, पाकिस्तान के रुपयों में काउंट करें कम से कम एग्जम्पशन 18 लाख की तो दे रहे हैं। यहाँ पर एक बंदा देखें, आपने मुल्क के अंदर मिनिमम टैक्स रेंज रखी है तो 35-40 हजार रुपया महीना, यानी कि 5 लाख रुपए तकरीबन साल की। तो आपकी तो टैक्स का स्लैब ही शुरू 6 लाख से हो जाता है। मतलब कि आप इस स्लैब मिनिमम वेजेस वाले को भी टैक्स कर रहे हैं। और दुनिया में कौन से मुल्क में होता है? ये तो ना दुनिया में इस तरह की इजाजत है। इन्वेस्टर इसीलिए अब दुबई सर, में जिस तरह 5 हम कह के थक गए हैं कि ये इतनी सख्त किस्म की रिटर्नें बनाने की बजाय सिंगल स्टेज वैट का मोड में चले जाए। आप यकीन करें 5% रेट कर दें, आपकी कंजम्पशन आप बहुत ज्यादा कलेक्शन होगी, जिसमें ना इनपुट का निजाम ऑपरेशन है, रद्दुल फसाद। मैं कहता हूँ ये फसाद का निजाम इसको रद्द कर दे। यहाँ पर हुकूमत यहाँ पर ले आए वैट का निजाम, नो इनपुट 5% रेट दे दे। जो पहला आएगा मैन्युफैक्चरर वो 5% दे दे, फिर आएगा होलसेलर वो 5% दे दे, रिटेलर आएगा वो 5% दे दे, फिर उसके बाद आपको ये 20% की कलेक्शन हो जाएगी। सही कह रहे हैं। देयर विल बी नो रिफंड। हुकूमत पिछले साल IMF ने मुतालबा किया था 13% पे टैक्स टू GDP, लेकिन अभी 10.7% पे है। इस दफा जो हुकूमती जराये कह रहे हैं वो 11% की कह रहा है, IMF कह रहा है चलो 11% पे टैक्स टू GDP को ले आए। आप समझते हैं मुमकिन है आ सकता है? देखिए सर, GDP एक गलत इंडिकेटर है। अच्छा आपको मैं जो मजेदारी की बात बताऊं, पाकिस्तान में एक हमारे आए थे महबूबुल हक साहब, उन्होंने कहा था ये GDP टू टैक्स रेशो एक फजूल चीज है, उसकी बजाय उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स
HDI کا تھا متعارف کرایا جائے اور اس کی بنیاد پر ٹیکسیشن کی جائے. GDP کیوں غلط ہے میں بتاتا ہوں. GDP میں ایک ایسے انڈسٹریلسٹ کی آمدن بھی آتی ہے جو 50 ارب روپیہ سال کا کما رہا ہے, اور ایک ایسے مزدور کی بھی آتی ہے جو 4800 روپیہ مہینے کا کما رہا ہے, یا 40,000 روپیہ مہینے کا کما رہا ہے. اب ان دونوں کو کمیولیٹیو کر کے آپ کے ملک کا GDP آپ نکال لیتے ہیں. ہاؤ از دیٹ فیئر؟ یہ کیسے فیئر ہے؟ یہ دونوں کی پھر اس کے بعد دونوں کی ٹیکسیشن آپ کہتے ہیں یکساں بنیادوں پر ہوگی. یہ کیسے فیئر ہے؟ اور بھائی یہ ممکن ہی نہیں ہے اس طرح کا. یہ آپ IMF کا یہ مسئلہ نہیں ہے. IMF کہتا ہے کہ جی آپ نے مجھ سے قرضہ لینا ہے, اپنی آمدن بڑھانی ہے, بلکہ اس کا آمدن بڑھانے سے بھی زیادہ تقاضا یہ ہے کہ آپ نے اپنا بجٹ ڈیفیسٹ کم کرنا ہے, آپ نے اپنا کرنٹ اکاؤنٹ کا یہ اصل بات ہے کہ آپ کے حکومتی اخراجات پچھلے 15 سال میں 800% بڑھ گئے ہیں. اوور گورننس کا شکار ہے. وہی یہاں پر ٹریفک چلان ہر بچے کا چوک پہ کھڑے ہو کے ہو رہا ہے, وہی کیمرہ بھی کر رہا ہے. بھائی خدا کا خوف کرو, کچھ تھوڑا سا گورننس کام کرو, قوم پہ رحم. میرے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہے شیخ عدیل شاہد صاحب. آپ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہے اور فنانس سیکرٹری ہیں انٹرنیشنل لائرز ایسوسیشن کے. شیخ عدیل صاحب, آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ بجٹ کی آمد ہے اور آنے والے بجٹ 2025 کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں, آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کا بہت شکریہ یوبی صاحب, آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا بجٹ پرپوزل کے بارے میں. بجٹ تو ہمیشہ ہی آتے رہتے ہیں اور اس میں کوئی ایسا ریلیف نہیں دیا جاتا, لیکن ہمیں بہت امید ہے کہ ہم جو 25 کا بجٹ ہے وہ عوام کے لیے اچھا ثابت ہو. لیکن انٹیگریشن جو ہیں بجٹ میں عوام کے لیے وہ کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں اس میں, بلکہ IMF نے جو چیزیں کہی ہیں اس پہ عمل درآمد ہوگا. خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ ٹیکس میں انہوں نے ایک تو یہ جو آرڈیننس لائے ہیں بجٹ سے پہلے ہی, اس کی وجہ سے بہت مشکلات آ رہی ہیں. سیکنڈلی ریٹرنز میں بہت زیادہ چینجنگ کی گئی ہیں. انیکچر J, انیکچر H1, انیکچر H ابھی تک ایڈ ہو چکے ہیں, لیکن اس میں کافی ایشوز آ رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ یہ بجٹ آنے سے پہلے جو اپنے پچھلے ایشوز ہیں ان کو سولو کر لیں, تاکہ بجٹ جب آئے تو لوگوں کو پتہ ہو کہ کیا اس میں چینجنگ کی گئی ہے, کیا چینجنگ نہیں کی گئی. شیخ عدیل صاحب, آنے والے بجٹ میں پراپرٹی سیکٹر میں کیا کیا چینجنگ آ رہی ہیں؟ تو فرسٹ آف آل دیکھیں, اس حکومت کا ہمیں سمجھ نہیں آتی, سیدھی سی بات ہے کہ وہ کیا چاہتی ہے, کب کیا چاہتی ہے اور کب کیا نہیں چاہتی. فرسٹ آف آل آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے انہوں نے کہا جی کہ ہم پراپرٹی پہ ود ہولڈ ٹیکس جو ایڈوانس ٹیکس لیا جاتا ہے وہ ختم کر رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا جی ہم ود ہولڈ ٹیکس تو ابھی نہیں ختم کر رہے, لیکن ہم ایک آپ کے اوپر سے جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے جو آلریڈی کورٹ میں ابھی اس کا کیس ہے اس کو ختم کر دیں گے, لیکن اس کا بھی ابھی تک انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب یہ سننے میں آ رہا ہے جو پراپرٹی کے لیے تجویز دے رہے ہیں حکومت کہ جی ہم اس میں ود ہولڈ اور فیڈرل ایکسائز ختم کر دیں گے, لیکن ہم جو آپ کا کیپٹل گین ٹیکس ہے جو آلریڈی 15% ہے اور یہ بہت ہائی ریٹ ہے دوسرے ممالک کی نسبت, اس میں یہ بلکہ مزید اضافہ کریں اور 25 سے 40% کی تجویز ہے. اگر یہ تجویز مان لی جاتی ہے تو اس سے پراپرٹی کا جو بزنس ہے اور خراب ہوگا, کیونکہ دیکھیں آگے ہی 15% بہت زیادہ ہوتا ہے. اور جو انہوں نے پچھلے سال بجٹ میں نیا قانون لائے تھے کہ اگر جو بندہ 1 جولائی 2024 سے پراپرٹی بائی کرتا ہے اور اس کو بعد میں سیل کرتا ہے تو وہ فکس ٹیکس دے گا 15% کیپٹل گین ٹیکس, جبکہ پہلے آگے سلیبز ہوتی تھی اور آفٹر 6 ایئر آپ جتنے کا مرضی سیل کریں اس پہ کوئی کیپٹل گین ٹیکس نہیں ہوتا تھا. جبکہ اب اگر آپ 10 سال بعد بھی سیل کرتے ہیں تو اس پہ 15% کے حساب سے آپ کو ٹیکس پے کرنا پڑے گا, جو آگے ہی بہت ہائی ریٹ ہے. تو اس کو اگر آپ 25% پہ لے جاتے ہیں تو آئی تھنک سو بہت سی پراپرٹیز ایسی ہیں جس میں نقصان بھی ہوتے ہیں, نفع ہوتا ہی نہیں, اور جس میں نفع ہوتا ہے تو اس پہ اگر آپ کیپٹل گین ٹیکس 25% لگا دیتے ہیں تو وہ آئی تھنک سو بہت زیادہ ہے. تو اس وجہ سے اس بجٹ میں جو پراپرٹی کے معاملات ہیں اس میں جو چینجنگ آ رہی ہے اس میں کافی پرابلم آئیں گی. شیخ عدیل صاحب, اس بجٹ میں کیا عام آدمی کو کوئی ریلیف ملے گا؟ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ بہت سی آپ کی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹیز ہیں ان کو ختم کیا جا رہا ہے, را مٹیریل پہ کسٹم ڈیوٹیز کو کم کیا جا رہا ہے. یہ ایک اچھی امید ہے کہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی یا کسٹم ڈیوٹیز کو کم کیا جا رہا ہے, یہ ایک ہمیں امید ہے اس ٹیکس ریلیف ملے گی اس بجٹ میں. لیکن جب تک بجٹ کیونکہ آتا نہیں اس بارے میں کنفرم نہیں کیا جا سکتا, لیکن اس دفعہ سننے میں آ رہا ہے کہ جی جو پراپرٹی پہ ایڈوانس ٹیکس ہے اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے, اسی طرح دوسری چیزوں پہ کچھ جگہ ایسی جن کی چیزوں پہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی را مٹیریل پہ ختم کی جائے گی تاکہ عوام کو ریلیف دیا جا سکے اور بزنس کمیونٹی کو ریلیف دیا جا سکے. لیکن یہ ابھی تک
सिर्फ बातें हैं, जब बजट आएगा तो ही पता चलेगा। शेख आदिल साहब, आखिर में ये भी बताइएगा कि आने वाले बजट में हुकूमत आम आदमी की बेहतरी के लिए क्या क्या हिकमत अमली अपना रही है और क्या क्या रिलीफ देना चाहती है? मैंने आपको जैसे कि बताया, बेहतरी के इकदाम यही है कि टैक्स में रिलीफ देने का प्रोग्राम तो है इनका, लेकिन ये अब वही बात है कि जब तक हमें कंफर्म नहीं होगा, बजट नहीं आता तो हमें कंफर्म नहीं हो सकता कि ये क्या क्या रिलीफ देने जा रहे हैं। लेकिन सुनने में यही आ रहा है कि ये फेडरल एक्साइज ड्यूटी में कमी ला रहे हैं, एडवांस टैक्सेस जो ये लेते हैं उसमें कमी ला रहे हैं, प्रॉपर्टी पे जो एडवांस टैक्स है, इसी तरह गाड़ियों पे एडवांस टैक्स है, इनमें कमी लाने का इनका प्रोग्राम है। लेकिन जब तक बजट नहीं आता इसके बारे में हम कंफर्म नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया शेख आदिल साहब, आपने हमें टाइम दिया। अच्छा मतलब जलील अमान साहब, 121 1A आ चुका है, आप क्या समझते हैं इस बजट में क्या होगा? फिर मैं ये समझता हूँ कि ऑफिसर को बेतहाशा इख्तियारात दिए गए हैं। खाई साहब के भाई ने ऑलरेडी जो टैक्स बार में एक बजट प्रपोजल दी थी उसमें ये कहा था कि ग्रेड 16, 17, 18, 19 का ऑफिसर जो है वो 2 करोड़ से ज्यादा टैक्स लगा सकता है, लेकिन जो 20वें स्केल का जो कमिश्नर है वो उनकी अपील नहीं सुन सकता। तो एक अपील का फोरम भी खत्म हो गया, ऑफिसर्स को बेतहाशा इख्तियारात मिल गए हैं कि अब वो आपका ही रेट लगाएंगे, अब आपका वो सेक्टोरियल एनालिसिस करेंगे, जबकि अपील जो है 2 करोड़ से ज्यादा ट्रिब्यूनल में। और अगर अपील आप कमिश्नर के पास जाते हैं तो उसके बाद आपने हाई कोर्ट में जाना है, और अगर कमिश्नर अपील ज़ाहिर है वो डिपार्टमेंट का होता है, FBR का, हाई कोर्ट में आपने स्टे के लिए 30% जमा करवाना है, चाहे आपकी डिमांड सारी ही इलीगल है, आपने 30% जमा कर 30%। अगर डिमांड आपकी खत्म हो जाती है, हाई कोर्ट से सारा टैक्स खत्म हो जाता है, तो वो जो 30% आप जमा करवाते हैं, डिपार्टमेंट अगर सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, आगे हाई कोर्ट में चला जाता है, और हाई कोर्ट से डिसीजन होने के बाद आपको जो है वो आपको वो मिल रहा है 30%। लेकिन तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें एग्रीड असेसमेंट होनी चाहिए। 121 जहाँ पर लेकर आए हैं तो कमिश्नर को इख्तियार दे। ADR में भी 5 करोड़ से ज्यादा बंदा, 5 करोड़ से ऊपर जिसको टैक्स लगेगा वो ADR में जाएगा। ADR को हम किस तरह पावरफुल फाल कर सकते हैं? ADR में रेलेवेंट कमिश्नर को लेकर आए, उसमें ADR में कहें जी कि हर बंदा ADR में जा सकता है। जिसको 50 लाख लगा है, करोड़ लगा है, 10 लाख भी लगा है, वो अगर कमिश्नर के पास जाए कि मेरे साथ ज्यादती हुई है नीचे वाले अफसर ने, और क्या पता उसको 10 लाख में वो 2 लाख रुपए जमा करवाना चाह रहा हूँ टैक्स पे। आप बिलीव करें कि पुराने ऑर्डिनेंस में यही चीजें थी जो 121 में ले आए, लेकिन कमिश्नर एग्रीड असेसमेंट करते थे, केस ऑफिसर पढ़ कर आते थे, शोकास को देखते थे, पढ़ते थे, अच्छी खासी कलेक्शन हो जाती। अब एक तो इसमें ऑफिसर का भी कसूर नहीं है, एक अफसर के पास 10,000 केस है, सिस्टम पर वो एंड पर चढ़ा देते हैं, वो देखते नहीं है। IRS ने फैसिलिटेट किया है, लेकिन इसके साथ साथ वो जो पढ़ने की वो आदत है वो ऑफिसर की खत्म हो गई, लॉ को पढ़ने की खत्म हो गई। तो इसमें मेरा यही है कि 121A में इस बजट में जो है वो एग्रीड में कमिश्नर को पावर दें कि अगर कोई भी टैक्स पेयर, कोई भी छोटा टैक्स पेयर वो ये चाहता है कि वो एग्रीमेंट करना चाहता है, रिवीजन ऑफ रिटर्न बहुत मुश्किल है। अगर आपने एक बंदे को 50 लाख का नोटिस दे दिया, रिटर्न रिवाइज नहीं कर सकता 122 के बाद, तो वो कमिश्नर के पास जाए, उसको बताए, और वो उसमें शोकास जो है, जिसमें मैं दोबारा कहूंगा कि जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा की डिमांड क्रिएट होती है, वो शोकास कमिश्नर को अपना अप्रूवल से देना चाहिए, या वो पुराना ऑर्डिनेंस अपील का जो है वो पुराना लॉ जो है वो बहाल किया जाए। 27 अरब रुपए को वसूल करने के लिए अपील सिस्टम को बदला गया, लेकिन आज पूरा साल हो गया, उसके असेसमेंट कर ले कितना रिकवर हुआ है, नहीं हुआ तो पुराने अपील सिस्टम को बहाल कर दिया जाए, यही कहना चाह रहे हैं ना? बिल्कुल अयूबी साहब, उसमें 2700 में भी आप देखें कि सारा जेन्युइन तो डिमांड नहीं है, ज़ाहिर बात नहीं होती। एक मैटर अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया एक इशू पर, और उसी इशू के जो सिमिलर केसेस हैं वो ज़ाहिर है वो सारा वो रेवेन्यू वो तो खत्म हो गया। अच्छा मतलब साहब, आखिर में ये भी बताइएगा, मौजूद जो टैक्स पेयर है उसको फैसिलिटेट करने के लिए क्या करना चाहिए हुकूमत को? मैं दोबारा यही कहूंगा, रिटर्न को सिंपल करें। जो टैक्स पेयर ऑलरेडी रिटर्न दे रहे हैं उनको ये बेतहाशा एनेक्चर से इससे बचाएं, इसको जो है वो सिंपल करें। सस्पेंशन फौरन हो जाती है, अब सस्पेंशन की अपील जो है वो ट्रिब्यूनल से भी ले ली है, तो जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है उनको ज्यादा सहूलतें दें। सेल टैक्स को भी IRS पर लेकर आए, उसका मैनुअल जो है वो ऑर्डर तो उसका बार कोडेड होता है, लेकिन टैक्स पेयर को पता नहीं होता, उसकी भी अपील जो है सिस्टम पर होनी चाहिए। और हेयरिंग का कोई ऐसा निजाम करेंगे, एक टैक्स पेयर घर में बैठ कर वीडियो लिंक के जरिए भी वो सेल टैक्स का अगर कुछ नोटिस आता है उसका जवाब दे दे, इनकम टैक्स का भी वीडियो लिंक के जरिए वो करें, टैक्स पेयर को फैसिलिटेट करें, और इसी तरह ही जो है वो कलेक्शन आपकी आएगी। सही है। उमर साहब, आपसे मेरे 2 सवाल है आखिर में। एक तो 19 अरब डॉलर जो अगले साल हमने कर्जा देना है, उसके लिए पाकिस्तान के पास क्या इंतजाम है? और आखिर में नॉन फाइलर को नेट में लाने के लिए हर दफा नारे लगाए जरूर जाते हैं, लेकिन टैक्स नेट में उनको लाया नहीं जाता, उसका क्या तरीकेकार है?
देखिए जी, $19 अरब तो वही हमारा पुराना नारा है, रोल ओवर। हमने जाकर फिर मिन्नतें करनी लोगों की कि जी ये अगले साल के लिए रोल ओवर। ये $19 अरब तो कई सालों से चलता आ रहा है, रोल ओवर हो रहा है। असल बात ये है कि ये रोल ओवर कराने की बजाय ना पाकिस्तान को अपने मल्टी डोनर मुल्कों से और एजेंसी से बात करनी चाहिए कि हम ये 10 साल तक ये पैसा नहीं दे सकते। इसका मतलब IMF का जो हुकूमत का नारा था आखिरी प्रोग्राम, ये आखिरी प्रोग्राम नहीं है। देखिए मैं इस पर राय नहीं दूंगा, क्योंकि अल्लाह करे कि आखिरी प्रोग्राम है, ये मेरे दिल की आवाज है, लेकिन फैक्ट्स एंड ग्राउंड रियलिटीज डोंट मैच विद दैट। तो उससे तो नहीं मैचिंग हो रही। वो तो लग रहा है कि ये अभी कहीं प्रोग्राम लेंगे। हम इस प्रोग्राम में बैठ के मैं तनकीद नहीं करूंगा, मैं सोल्यूशन भी दूंगा। सोल्यूशन ये है कि इसको रोल ओवर की बजाय उनसे बात करे, जाकर उन्हें कहिए हमें ये रीशेड्यूल करें, रोल ओवर ना करवाएं। तमाम जब कोई बिजनेस फंस जाए जाकर रीशेड्यूलिंग करें। 10 साल और 10 साल हम बीच में सूद नहीं देंगे आपको, हमारे पास पैसे नहीं है। हम 10 साल कफायत शारी करेंगे, सादगी करेंगे, अपने रिजर्व्स को बिल्डअप करेंगे, लेकिन बात वो है कि जहाँ पर हुकूमत ने खर्चे ही नहीं कम करने, अपने अखराजात वहाँ भी कम पर करने याशी नहीं खत्म होनी। आवाम से क्या यानी उम्मीद कि रखी इस जा वक्त समय के तो इतनी याशी है सरकारी महकमों में कि हमारी सोच से भी बाहर। इतना वसाइल का बेदरेक 90 कनाल का घर है कमिश्नर्स का, डीसीज का, वो बेदरेक वहाँ पर खर्चे होते हैं। ये मुल्क हमारा 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट ये कहूँ अभी तक हम आज़ाद नहीं। अच्छा, नॉन फाइलर को सर, नॉन फाइलर की इस्तिलाह, इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये आज सोच लें। नॉन फाइलर का मतलब है कि जो रियासत है ना, जो हम इतनी हार्ड स्टेट बनती जा रही है, उसने हैंड्स अप कर दिए हैं कि आप लोगों से टैक्स ले ही नहीं सकते। आपने एक नॉन फाइलर क्रिएट करके उसको पीनलाइज कर दिया। दुनिया सारी में कहीं नॉन फाइलर नहीं होता। ये हमारी नाकामी ये है। नॉन फाइलर क्या है? ये नाकामी है। ये नॉन फाइलर तो होना नहीं चाहिए। ये नॉन फाइलर, देखिए आपके मुल्क में कारोबार करना है किसी ने, सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि वो जब कारोबार के लिए दरखास्त दे या शुरू करे तो वो लाइसेंस ले और वो लाइसेंस NTN के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाए। ये उसका तरीका है। ये नॉन फाइलर क्या है? ये दिस इज फेलियर ऑफ योर FBR, टोटल फेलियर ऑफ योर FBR, जो कहते हैं कि हम लोगों को रजिस्टर ही नहीं कर सकते। लेकिन जो कारोबार खोलता है, कोई दुकान खोलता है, 40 महकमे उसके पास से पहुंच जाते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त रिश्वत का कल्चर अरूज पे है। सही कह रहे हो। जो रेट्स है रिश्वत के वो डबल ट्रिपल हो चुके हुए हैं और किसी तरह का उसका तदारक नहीं किया जा रहा। अगर आपकी छत के ऊपर गंद पड़ा हुआ है, आप जितना मर्जी पानी बहाते जाएंगे वो गंद ही नीचे आएगा। इट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। आप ऊपर आ जाए ईमानदार आदमी, आपका मुल्क ठीक हो। उमर साहब आपको बहुत शुक्रिया, मलिक जलील अमान साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारा एक्सपर्ट गुफ्तगू सुनी। नॉन फाइलर को टैक्स नेट में लाने के लिए सादा सा कुलिया है। नॉन फाइलर आपकी कमजोरी है, हमारी कमजोरी है, हुकूमत की कमजोरी है। अपनी कमजोरी को दूर करें और हुकूमती अखराजात कम करें ताकि अवाम को आप कफायत शारी पे यकीन में ला सकें। अगर आप अपना अखराजात कम करेंगे तो हमारे कर्जे भी कम होंगे। और जो टैक्स नेट में अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो प्रोफेशनल्स को आगे लाएं, टैक्स रेट को कम करें। बजाय टैक्स रेट बढ़ाने के आप उनको कम करेंगे तो लोग खुद ब खुद टैक्स नेट में आना शुरू हो जाएंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल यूबी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।